اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی قرآن ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا روزے کو باطل کرنے والی اشیاء، جس میں سے ہم 5ویں تک اور 6ٹھے تک پہنچے تھے کہ اذان صبح تک جنابت ہے اور نفاس کی حالت میں باقی رہنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو شخص جو ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو حیض یا نفاس کی حالت پر باقی رکھتا ہے، یا نفاس پر باقی رکھنا کیسے ہے، مثال کے طور پر حیض سے پاک ہو گئی تھی لیکن اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، یعنی خود کو وہ ابھی تک حائض سمجھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ غسل نہیں کرے گی وہ حائضہ ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور غسل جب تک غسل نہیں کرے گی وہ مجنب ہی کہلائے گی، جب تک غسل نہیں کرے گی وہ نفاس والی عورت ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی سے متعلق آج ہمارا مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 1603۔ اگر جنب شخص رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے، یعنی اس نے فعل انجام دیا، اب وہ سو گیا، سو کر اٹھا اور اسے یقین تھا یا اسے احتمال ہو کہ اگر وہ دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اس کو پتہ تھا کہ ہاں بھی میں تو صبح بھی مجھے تو اس حالت میں نیند نہیں آئے گی، میں دوبارہ میری آنکھ کھل جائے گی اور اذان صبح سے پہلے جب میری آنکھ کھلے گی تب میں اٹھ کر غسل انجام دے دوں گی، اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ لیکن اب اگر وہ سو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سو گئی اور اس کی آنکھ جو ہے وہ اتفاقاً کیا ہے نہیں کھلی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب تو اذان صبح ہو گئی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس دن کا روزہ وہ ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری مرتبہ پھر سو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف جاگی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں گی لیکن پھر سو گئی اور وہ نہیں اٹھ سکی، یعنی دوسری نیند ہوگی، لیکن اگر وہ دوسری نیند سے جاگی تھی دوبارہ تیسری نیند سو گئی ہے اور صبح کی اذان تک بیدار نہیں ہوئی تو اس دن کے روزے کی قضا بھی کرے گی اور احتیاط مستحب کی بنا پر وہ اس دن کے روزے کا کفارہ بھی دے گی۔ اگر کسی روزے دار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں صبح کی اذان کے بعد جاگے اور یہ دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے، اگرچہ اسے معلوم ہو کہ یہ احتلام اذان سے پہلے ہوا تھا، اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہے۔ جو شخص رمضان کی قضا روزہ رکھنا چاہتا ہو، اگر وہ صبح کی اذان کے بعد بیدار ہو اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا اور جانتا ہو کہ یہ احتلام اسے صبح کی اذان سے پہلے ہوا تھا، تو اس دن کے رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر رمضان کے روزوں میں عورت صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور آمدن غسل نہ کرے، یعنی پاک ہو گئی تھی حیض سے نفاس سے اور لیکن اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا تو اس کا فریضہ تیمم کرنا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کے پاس وہ جاگی ہے اور اس کے پاس غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر غسل کرنے جائے گی تو پیچھے اذان ہو جائے گی تو اس کے لیے کہ وہ تیمم کرے، اور اگر تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور اس دن کی قضا بھی کرے۔ رمضان کی قضا میں اگر جان بوجھ کر غسل یا تیمم نہ کرے تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر اس دن کا روزہ وہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ہی وہ کیا ہے یا پھر اتفاقاً اسے ایسا ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے تھا کہ وہ اپنے آپ وہ تیمم کر لیتی، تیمم کر کے وہ اپنا روزہ جو ہے وہ اس دن کا رکھ سکتی، پھر اس نے تیمم بھی نہیں کیا تو پھر اس کے لیے کہ اس دن کا روزہ بھی رکھے گی اور پھر اس دن کا قضا بھی کرے گی۔ جو عورت رمضان کی شب میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، تو اس دن اس کا روزہ صحیح ہے، اگرچہ کہ اس نے خود کو کیا غسل نہیں کیا لیکن یہ ہے اس کا وظیفہ جو اب تیمم تھا اس نے تیمم کیا ہے، تب اس کا روزہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اگر عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، صبح کی اذان تک بیدار رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس جنب شخص کا فریضہ تیمم ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کا وظیفہ ہی تیمم ہے، ایک ہے کہ نہیں اس نے غسل نہیں کیا یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا ہے، اب اس نے تیمم کر لیا، مثال کے طور پر صبح کی اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے اس کی آنکھ کھلی ہے تو اب اس کے لیے 5 منٹ میں اب تو غسل نہیں کر سکتی، یعنی اس کو جاتے ہی کپڑے اتارتے اور غسل اپنے جسم بھگونے میں ہی اس کا سارا ٹائم چلا جانا تھا، تو وہ تیمم کر لیتی، تیمم کر کے اس دن کے روزے کی نیت کر لیتی تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ جس کا فریضہ ہی اصل میں تیمم تھا۔ اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے قریب حیض یا نفاس کی خون سے پاک ہو جائے اور اس تیمم میں سے کسی کا وقت نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ پاک ہی دراصل اسی وقت ہوئی ہے، یعنی ادھر اس نے دیکھا ہے کہ وہ پاک ہوئی اور صبح کی اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی اسی وقت ہی پاک ہوئی، اس سے پہلے جو ہے اس کو بلڈ آ رہا تھا یا اس سے پہلے وہ ہلکی سی یلوش لیکوڈ اس کے نکل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اذان صبح کا وقت ہوا بالکل اذان قریب ہو گئی ہے
ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो पहले उठी है, उसने चेक किया है कि लेकिन उसका भी रेडिश था, उसको तो लगा था कि बस अभी मैं हो जाऊंगी, किसी भी वक्त मैं पाक हो सकती हूँ, तो यहाँ तक कि अब वो देखे कि सुबह की अजान के बिल्कुल करीब ही यानी चंद सेकंड पहले ही अगर वो पाक हो गई है, तो उस दिन का रोज़ा जो है, क्योंकि अब ना तो वो तयम्मुम कर सकती है और ना ही वो उसके पहले गुस्ल का हुक्म है, तो उस दिन का रोज़ा जो है उसका सही है। अगर कोई औरत सुबह की अजान के बाद हैज़ या नफास के खून से पाक हो जाए या दिन में हैज़ या नफास का खून आ जाए, तो अगरचे ये खून मगरिब के करीब ही क्यों ना आए, उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। यानी अगर उसने रोज़ा रखा था और उसको हैज़ आ गया, तो उसका रोज़ा बातिल है, अगरचे कि मगरिब से 1-2 मिनट पहले ही क्यों ना हो। अगर औरत हैज़ या नफास का गुस्ल करना भूल जाए और उसे एक दिन या कई दिन के बाद याद आए, तो जो रोज़ा उसने उसने रखे हों वो सही है। अगर औरत रमज़ान में सुबह की अजान से पहले हैज़ या नफास से पाक हो जाए और गुस्ल करने में कोताही करे और सुबह की अजान तक गुस्ल ना करे और वक्त तंग होने की सूरत में तयम्मुम भी ना करे, ठीक है। यानी एक तो ये था कि उसका वजीफा था कि वो खुद को गुस्ल करती, उसने गुस्ल भी नहीं की, यहाँ तक कि वक्त तंग हो गया। अब उसका फरीज़ा तयम्मुम था, उसने तयम्मुम भी नहीं किया, तो जैसे ही गुजर चुका, ज़रूरी है कि उस दिन का रोज़ा भी पूरा करेगी और कज़ा भी करेगी। लेकिन अगर कोताही ना करे, यानी उसने जानबूझकर ऐसे नहीं किया, मतलब मुंतज़िर हो के ज़नाना हमाम मैसर आ जाए या घर में एक ही वाशरूम था, वो उसके लिए कि अब ये सारे हटे तो मैं अपना जाऊँ गुस्ल कर आऊँ, तो खा इस मुद्दत में वो 3 मरतबा सोए और सुबह की अजान तक गुस्ल ना करे और तयम्मुम में कोताही ना करे, तो उसका रोज़ा जो है वो उस दिन का रोज़ा जो है वो सही है, अगर इस तरह की उसके ऊपर हालत हो। जो औरत इस्तिहाज़ा एक कसीरा की हालत में हो, अगर वो गुस्लों को उस तफसील के बसात न बचा ले जिसका जिक्र 394 में हुआ है, ठीक है। इस्तिहाज़ा कसीरा की हमने पढ़ा था 2 हालतें हैं, या तो उसके ऊपर 5 गुस्ल वाजिब होते हैं या 3 गुस्ल वाजिब होते हैं, तो उसका रोज़ा जो है वो सही है। ऐसे ही इस्तिहाज़ा मुतवस्ता में अगर औरत गुस्ल ना भी करे, तो उसका रोज़ा सही है, क्योंकि इस्तिहाज़ा मुतवस्ता जो है उसका दिन में एक ही गुस्ल होता है, बाकी हर नमाज के लिए अलग-अलग उसने वज़ू करना होता है और उसके अहकामात जो हैं जिस तरह कलीला में बयान हुए वो अंजाम देने होते हैं। जिस शख्स ने मैयत को मस किया हो, यानी अपने बदन का कोई हिस्सा मैयत के बदन से मस किया हो और गुस्ल मस से मैयत के बगैर रोज़ा रख सकता है, और अगर रोज़े की हालत में भी मैयत को मस करे तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता, ठीक है। यानी अगर आपने किसी मुर्दे को हाथ लगा दिए, हाथ लगाने से आपका गुस्ल वाजिब हो गया है, तो उससे आपका रोज़े पे कोई भी असर नहीं पड़ता। हुक्ना लेना यानी पानी या हर माया बड़ी आंत में मकत के ज़रिए दाखिल करना, ठीक है। यानी ये अक्सर डॉक्टरी वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ बंदे कहते हैं कि हमारा क्या है, बड़ा पेशाब आना उन्हें बंद हो जाता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स जो है उनका हुक्ना करते हैं, ठीक है। यानी उनकी मक़त के ज़रिए उनके अंदर कुछ मायादार चीज़ डालते हैं या पानी के लिक्विड वगैरह ऐसा डालते हैं कि जिसकी वजह से प्रेशर से उनका वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये उस तरह करना ये क्या कहलाता है, हुक्ना कहलाता है। हुक्ना सियाल चीज़ से हुक्ना लेने से अगरचे बेअमर मजबूरी और इलाज के गर्ज से हो तो रोज़ा बातिल हो जाता है। क्या करना, अगर रोज़ेदार जानबूझकर क्या करे यानी उल्टी करे और अगर वो बीमारी वगैरह की वजह से ऐसा करना मजबूरी हो, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर सहवन या बेख्तियार से, यानी वो भूल गई थी कि वो रोज़े से है और उसने बेख्तियार होकर उससे उल्टी निकल गई है, तो फिर उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं, यानी उसका रोज़ा जो है वो ठीक है। अगर कोई शख्स रात को कोई ऐसी चीज़ खा ले जिसके बारे में उसे मालूम हो कि इसके खाने के बाद उसको सुबह ज़रूर बेख्तियार के आ जाएगी, तो उसका रोज़ा सही है, ठीक है। अगरचे कि उसे मालूम है कि अगर वो खा लेगा तो इख्तियार क्या आएगी, तब भी उसका रोज़ा जो है वो रोज़ा सही है, ठीक है। यानी अगर वो बेइख्तियार के आएगी, यानी उसके इख्तियार में नहीं रह जाएगा कि वो उसको कंट्रोल करे कि ये उल्टी बाहर ना आने पाए, ठीक है। अगर रोज़ेदार क़ैर रोक सकता हो जबकि उसे तबई निज़ाम के तहत ही कह आ रही हो, तो उसे रोकना ज़रूरी नहीं है। अगर रोज़ेदार के हलक में मक्खी चली जाए, चुनाचे वो इस हद तक अंदर चली गई हो कि उसके निगलने को खाना ना कहा जाए, तो ज़रूरी नहीं कि उसे बाहर निकाला जाए और उसका रोज़ा सही है। लेकिन अगर मक्खी काफ़ी हद तक अंदर ना गई हो, तो ज़रूरी है कि बाहर निकाले, अगरचे उसे कह करके ही निकालना पड़े, मगर ये कि कह करने में रोज़ेदार को ज़रूर ज़रर और शदीद तकलीफ हो और वो कह ना करे तो उसे निगल ले, तो भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, और अगर कह करके बाहर निकाल ले तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, यानी दोनों सूरतों में उसका रोज़ा जो है वो बातिल है। अगर रोज़ेदार सहवन कोई चीज़ निगल ले, यानी भूले से, ठीक है, सहवन कहते हैं भूले से कोई चीज़ निगल ले और उसके पेट में पहुँचने से पहले उसे याद आ जाए कि रोज़े से है, चुनाचे अगर वो चीज़ इतनी नीचे जा चुकी हो कि उसे मैदे तक जाने देना खाना ना कहा जा सके, तो उस चीज़ का निकालना लाज़िम नहीं और उसका रोज़ा भी सही है। यानी वो इस हद तक नीचे उतर गया है कि अब वो उसे बाहर तो नहीं निकाल सकता, तो उसका रोज़ा जो है वो सही है। अगर रोज़ेदार को
यकीन हो कि डकार लेने की वजह से कोई चीज़ उसकी हलक से बाहर आ जाएगी, चुनांचे अगर उसे क्या करना कहा जा सके तो ज़रूरी है कि जानबूझकर डकार ना ले। लेकिन अगर उसे यकीन ना हो तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है? यानी उसे ये यकीन नहीं है कि मतलब उसे फ़कत एहतमाल है कि हो सकता है कि ऐसे हो, तो कोई हर्ज नहीं। अगर रोज़ेदार डकार ले और कोई चीज़ उसके हलक या मुँह में आ जाए तो ज़रूरी है कि उसे उगल दे, और अगर वो चीज़ बेइख्तियार पेट में चली जाए, जैसे बाज़ औक़ात खट्टी सी डकार आती है और एकदम से लिक्विड मुँह में आके फ़ौरन अंदर चला जाता है, तो उससे हमारा रोज़ा जो है वो बातिल है। रोज़ा सही है, सॉरी। रोज़ा हमारा सही है। उन चीज़ों के अहकाम जो रोज़े को बातिल करती हैं। अगर इंसान जानबूझकर और इख्तियार के साथ, यानी जानबूझकर क्या है, खुद उसका पूरा इरादा था कि मैं ऐसा काम करूँगा। इख्तियार के साथ क्या है, इख्तियार के साथ ऐसे यानी वो अपने इख्तियार से करे, कोई किसी ने उसको मजबूर नहीं किया कि ये काम हतमी तुमने ये करना ही करना है, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा होगा या इस तरह का, ठीक है? यानी इस तरह का कोई भी उसको मजबूर नहीं किया गया, वो उसने इख्तियार के साथ कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। और अगर ऐसा काम जानबूझकर न करे तो फिर इश्काल नहीं, कि अगर जुन्ब सो जाए और उसकी तफसीर के मुताबिक जो हम पीछे अभी बयान कर आए हैं, सुबह की अजान तक गुस्ल न करे तो उसका रोज़ा बातिल है। चुनांचे अगर इंसान ना जानता हो कि जो बातें बताई गई हैं उनमें से बाद रोज़े को बातिल करती हैं, और मसला जानने के मसले में उसने कोताही ना की हो, मसला मिसाल के तौर पर उसके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था, या उसके पास ऐसा दीन की इस तरह उसकी सख्त रूटीन थी कि वो अपना दीन के मामलात जो हैं वो नहीं सीख पाई, और लेकिन उसे इतना पता था कि कुछ चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था किन किन उमूर की वजह से और किन किन नुक्ते पर या पॉइंट पर जाकर उसका रोज़ा बातिल होता है, वो उसको ज़्यादा तफसील नहीं है, ठीक है? और उसने कोताही भी नहीं की मसला सीखने में, और ना ही किसी किस्म की तरद्दुद का शिकार हो, या ये कि शरई हुज्जत पर एतमाद रखता हो और खाने पीने और जमा के अलावा उन अफ़आल में से किसी फ़ेल को अंजाम दे, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता, ठीक है? यानी अगर वो मुब्तलात रोज़ा में से कोई भी फ़ेल उसने अंजाम दे दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि तफसीली हुक्म कौन-कौन से नुक्ते पर जाकर हमारा रोज़ा बातिल होता है, लेकिन उसको मुख्तसर पता था और चंद चीज़ों के बारे में पता था, तो अगर वो खाने-पीने और जिमा के अलावा कोई काम करती है, तो फिर उसका रोज़ा जो है वो बातिल नहीं है। अगर रोज़ेदार सहवन यानी भूले से कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो, और ये समझते हुए कि उसका रोज़ा बातिल हो गया है, दोबारा आमदन कोई ऐसी चीज़ खा ले, तो पिछले मसले में बयान शुदा हुक्म उस पर जारी होगा। ठीक है? यानी सहमन जो उसने खाया था तब तो कोई हर्ज नहीं थी, लेकिन अब चूँकि उसने जानबूझकर खा लिया है तो उसका रोज़ा बातिल है। तो लिहाज़ा उस दिन का उसने रोज़ा जो है रोज़ा कज़ा भी करनी है, और फिर उसका कफ़ारा भी इंशाअल्लाह हम आगे 10 में पढ़ेंगे। अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती रोज़ेदार के हलक में उडेल दी जाए, ठीक है? अब है कि उसके इख्तियार में नहीं रहा, अब ज़बरदस्ती की जा रही है। अगर ज़बरदस्ती उसके हलक में कोई चीज़ उडेल दी जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन अगर उसे मजबूर किया जाए कि उसे रोज़े को खाने-पीने या जिमा के ज़रिए बातिल करें, मसलन उसे कहा जाए कि अगर तुम ग़िज़ा नहीं खाओगे तो हम तुम्हें जाली या मानी नुकसान पहुँचाएँगे, और नुकसान पहुँचने के लिए वो अपने आप कुछ खा ले, तो तुम कहा जाए कि अगर तुम ग़िज़ा नहीं खाओगे तो तुम्हें जानी या माली नुकसान पहुँचाएँगे, और वो नुकसान से बचने के लिए अपने आप कुछ खा ले, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, और इन तीनों चीज़ों के अलावा भी एहतियात वाजिब की बिना पर रोज़ा बातिल हो जाएगा अगर वो अपने आप ही खा लेता है। ठीक है? अगर खाने-पीने की चीज़ और जिमा के अलावा है और मजबूर किया जा रहा है, बेइख्तियार उस वो है कि अब उसका कोई इख्तियार नहीं रहा कि वो उनको मना कर सके, यानी अब वो मजबूर और लाचार है, तो तब रोज़े और जिमा के खाने-पीने और जिमा के अलावा बाकी अफ़आल में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनके होते हुए चाहे वो मजबूर है, चाहे वो नहीं है, हर सूरत में उसका रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है। रोज़ेदार को किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में वो जानता हो कि लोग कोई चीज़ उसके हलक में डाल देंगे या उसे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर करेंगे। अगर ऐसी जगह जाए और अमर मजबूरी वो खुद को कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पहले पता था कि वो ऐसी जगह जाएगा, उसका रोज़ा बातिल करवा दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ उसके हलक में उडेल दें तो एहतियात लाज़िम की बिना पर भी यही हुक्म है। एहतियात लाज़िम की बिना पर अगर उसके मुँह में कोई चीज़ उडेली गई है, ज़बरदस्ती डाली गई है, तो अब उसने ऊपर उसका रोज़ा जो है वो बातिल हो गया उसके, ठीक है? तो रोज़ा बातिल होगा। क्यों बातिल होगा? क्योंकि वो जानता था कि मैं इसी जगह पर जाऊँगा तो मेरे ये साथ ये सिचुएशन जो है वो मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। लिहाज़ा उसका रोज़ा जो है वो बातिल है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।